Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's session, I am here with the page 4 and which is the last page of this chapter, Akshay Urja, Bhavishya Ki Urja. Let's start. Jwar Bhata. The meaning of Jwar Bhata is rise and fall of sea tides. So, Jwar Bhata से प्राप्त ऊर्जा. The energy produced by the rise and fall of a sea tides is called tidal energy. Now the paragraph starts. समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को टरबाइनों की मदद से विद्युत में बदल दिया जाता है. मीन्स समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा मीन्स द rise and fall of sea tides के कारण उत्पन्न होने वाली means which is produced because of these rise and falls टरबाइनों की मदद से with the help of turbines विद्युत में बदल दिया जाता है is converted into electricity. This tidal energy is the energy which is being produced by the rise and fall of sea tides is converted into electricity with the help of turbines. नेक्स्ट लाइन. इसमें पानी ऊपर चढ़ने और उतरने दोनों स्थितियों में विद्युत शक्ति पैदा होती है. मीन्स when the sea water rises as well as when it falls, in both the situations electricity can be generated. इसे लहर ऊर्जा भी कहते हैं. लहर मीन्स वेव, WAVE. Tidal energy is also known as wave energy. हालांकि इसका अभी बहुत कम उपयोग प्रारंभ हो पाया है. हालांकि मीन्स although it is not widely used at present. अभी मीन्स at present बहुत कम मतलब very less. किंतु निकट भविष्य के लिए इसमें अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता निहित है. But it has great potential. क्षमता मीन्स potential. प्रदान करने की मीन्स देने की. To provide निकट भविष्य मीन्स near future. So what is the meaning? Although it is not widely used at present, it has great potential to provide energy in the near future. Now next, जैव ऊर्जा. जैव means bio, ऊर्जा means energy. धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति और जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं. Means all the plants and living organic materials found on the earth are called biomass. मौजूद means available. वनस्पति means plants. जीव पदार्थ means organic materials. Next line. इनसे प्राप्त ऊर्जा ही जैव ऊर्जा है. Means the energy obtained from biomass is known as bioenergy. नेक्स्ट लाइन. बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है. मीन्स बायोमास इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू ह्यूमंस. सबसे पुराना मीन्स ओल्डेस्ट, स्रोतों मीन्स sources. So biomass is one of the oldest sources of energy known to humans. पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनमें इकट्ठा होता है. मीन्स पेड़ पौधे मीन्स प्लांट्स. प्रकाश संश्लेषण मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस के द्वारा जो भोजन बनाते हैं. मीन्स दे प्रिपेयर द फूड with the help of the process of the photosynthesis. रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक means chemical, ऊर्जा means energy. So basically what is the meaning? Plants prepare food through the process of photosynthesis. This food stores chemical energy. इस ऊर्जा को विभिन्न विधियों से means by different methods जैव ऊर्जा में बदला जा सकता है. कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायो एनर्जी. जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है. दिस बायो एनर्जी इज यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. जस्ट लेट मी रिकॉल दिस पैराग्राफ. All the plants and living organic materials found on the earth are called biomass. The energy obtained from biomass is known as bioenergy. Biomass is one of the oldest sources of energy known to humans. Plants prepare food through the process of photosynthesis. This food stores chemical energy, and this chemical energy can later be converted into bioenergy using different methods.
Now this bioenergy is used in different forms. First, ठोस रूप में, ठोस मीन्स सॉलिड, रूप में मीन्स फॉर्म, इन द सॉलिड फॉर्म. नेक्स्ट लाइन, खाना पकाने के लिए मीन्स फॉर कुकिंग, लकड़ी, पशुओं के गोबर मीन्स काव डंग, कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट मीन्स एग्रीकल्चरल वेस्ट, अपशिष्ट मीन्स वेस्ट, कृषि मतलब एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल. घास फूस मीन्स ग्रास एंड स्ट्रॉ आदि को जलाकर प्रयोग करते हैं. सो व्हाट इज द होल मीनिंग? वर्ड काउ डंग, agricultural waste, grass and straw are burnt to produce heat for cooking and other purposes. Next form is द्रव रूप में means liquid. पौधों में पाए जाने वाले स्टार्च या शर्करा से बने एथनॉल तथा वनस्पति तेलों से बने बायोडीजल का उपयोग सीधे ही या फिर थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जा सकता है. मीन्स ethanol made from starch and sugar. So sharkara is sugar. So ethanol which is made from this starch and sugar, and these two things are found in the plants. पौधों में पाए जाने वाले means found in the plants. And biodiesel made from vegetable oils can be used directly or after slight modification as an alternative to petrol in vehicles. थोड़ा बहुत परिवर्तन मीन्स स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ मीन्स विथ, विकल्प मीन्स ऑल्टरनेटिव to petrol in vehicles. So what is the meaning? The ethanol which is made from the starch or sugar, and this starch and sugar present in the plants. Similarly, the biodiesel which is made from the vegetable oils. So these two things, ethanol and biodiesel, can be used either directly or otherwise after a slight modification as an alternative to petrol in vehicles. नेक्स्ट, गैस रूप में मीन्स इन गैसियस फॉर्म. पशुओं के व्यर्थ पदार्थ मीन्स वेस्ट तथा कचरा मीन्स हाउस होल्ड गार्बेज आदि को बायोगैस प्लांट में बायोगैस में बदल दिया जाता है. मीन्स इज कन्वर्टेड इनटू बायोगैस इन बायोगैस प्लांट्स. So animal waste and household garbage are converted into biogas in biogas plants. रसोई मतलब किचन. रसोई में उपयोग के साथ साथ इसे डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं. रसोई में उपयोग के साथ साथ मीन्स विद द यूजेज फॉर कुकिंग, इसे डीजल पंप सेट भी चला सकते हैं. मीन्स द डीजल पंप सेट कैन ऑल्सो रन using this biogas. The whole meaning, biogas is used for cooking and can also run diesel pump sets. Next line, गैस रूप में रूपांतरित होने के बाद बचे हुए अपशिष्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है. मीन्स द वेस्ट विच इज लेफ्ट आफ्टर प्रोड्यूसिंग बायोगैस is used as organic manure which is called fertilizer. So basically रूपांतरित होने के बाद means after converting or after producing biogas, whatever is the left that can be used in the form of fertilizer. नेक्स्ट पैराग्राफ विच इज द कंक्लूजन. यह निश्चित है कि आने वाले कुछ हजार वर्षों में हमारा परंपरागत ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाएगा. यह निश्चित है मीन्स इट इज सर्टेन दैट द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल बी एग्जॉस्टेड आफ्टर सम थाउजेंड्स ऑफ ईयर. कुछ हजार वर्षों में मीन्स आफ्टर और विद इन थाउजेंड्स ईयर्स. इस तथ्य को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है. मीन्स इस तथ्य को देखते हुए मीन्स बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग मीन्स डेवलपिंग एंड यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आज की आवश्यकता है. हैज बिकम द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम. द होल मीनिंग, इट इज सर्टेन दैट द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल बी एग्जॉस्टेड आफ्टर सम थाउजेंड्स ऑफ ईयर. देयरफॉर डेवलपिंग एंड यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैज बिकम द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम. नेक्स्ट लाइन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित रखना एक बड़ी चुनौती है. चुनौती मीन्स
challenge, बड़ी चुनौती means major challenge. So to reduce climate change and environmental pollution, what is the meaning of this? जलवायु परिवर्तन. जलवायु परिवर्तन means climate change. पर्यावरणीय प्रदूषण मीन्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचाव के लिए मीन्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को मीन्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन नियंत्रित मीन्स कंट्रोल एक बड़ी चुनौती है इज अ मेजर चैलेंज. The whole meaning to reduce climate change and environmental pollution, controlling greenhouse gas emissions is a major challenge for all countries. जिसके लिए सभी देश प्रयासरत हैं. Means all the countries are working on it. निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी का स्वरूप अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला है. निश्चित रूप से मीन्स सर्टेनली और मेनली के आधार पर मतलब बेस्ड निर्धारित होने वाला है मीन्स विल डिपेंड. द होल मीनिंग द 21st सेंचुरी विल डिपेंड मेनली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी और यही अक्षय विकास का मुख्य स्तंभ है. एंड दिस इज द की KEY की इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अक्षय ऊर्जा और इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल energy. So children, just a quick recap. Renewable energy helps us protect the environment and save natural resources. Bioenergy makes useful fuel from waste materials, while tidal energy uses the movement of seawater to generate electricity. By using these clean energy sources, we can reduce pollution and make our future safer. This chapter, Akshay Urja, Bhavishya ki Urja. It has been finished. See you soon in my next video with the next chapter. Till then, thank you. Bye bye. Stay safe. Stay healthy.